Bismillahirrahmanirrahim. Class 9. Now we are going to study chemistry, chapter number 2, structure of atom. Today we will learn or discuss exercise. First of all, we are going to discuss multiple choice from exercise. Then we will discuss short question from that exercise. Clear? Let's have a start with the exercise MCQs. The first MCQs is, which one of the following result in a discovery of proton? Here are the options. Number 1, cathode rays. Number 2 or B, canal rays. Then X-rays and alpha rays. The answer is canal rays. ठीक है? आपको अच्छे से पता है, पीछे हमने सारी डिस्कशन की थी. Cathode rays is related with the discovery of electron and canal rays is related with the discovery of proton. Clear? Second MCQs from exercise is that which one of the following is most penetrating? Here are the options: proton, electron, neutron and alpha particle. The answer is neutron. इसकी property से हमें अच्छे से पता है कि neutron having ability to penetrate the most. Another MCQs from exercise is the concept of orbit was used by. The options are J.J. Thomson, Rutherford, Bohr and Planck. आपको अच्छे से पता है, Bohr used the concept of isotope. Clear? Now, the other MCQs is, which one of the following shell consists of 3 subshells? Options are O shell, N shell, L shell, M shell. आपको अच्छे से पता है, M shell consists of 3 subshells. Clear? Now, another MCQ from the exercise is that which radioisotope is used for diagnosis of tumor in our body? अभी हमने अपने previous lecture में ही discuss किया है, for the diagnosis of tumor in our body, the isotopes is used, that is iodine 131. So the B option is the correct option. Another MCQ is when uranium-235 break up, it produces electron, neutron, proton and nothing. अभी हम डिस्कस करके आए हैं इसकी यूजेस में, दैट इज इट प्रोड्यूस न्यूट्रॉन्स. कितने न्यूट्रॉन्स? 3 न्यूट्रॉन्स. क्लियर? Another MCQs from the exercise is that the p subshell has 1 orbital, 2 orbital, 3 orbital और 4 orbital. आपको अच्छे से पता है p subshell have 3 orbitals. ठीक है? Now, another MCQ from exercise is deuterium is used to make light water, heavy water, soft water and hot water. The right option is heavy water. The next MCQ is the isotope C12 is present in abundance of. आपको अच्छे से पता है कितनी abundance में होता है ये? 98.9%. ठीक है? The A option is the correct option for this MCQ. The last MCQ from the exercise is that who discovered the proton? This is the most important MCQs according to board. The options are Goldstine, J.J. Thomson, Neil Bohr and Rutherford. The answer is Goldstine. Clear? Now, let's start discussing exercise short question. The first short question from the exercise is, what is the nature of charge on cathode rays? हम इसको प्रीवियसली बेटा डिटेल डिस्कस करके आए हैं. आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देंगे? आपने एक रीजन भी साथ देनी है ताकि 2 मार्क्स कंप्लीट ग्रैब कर सकें. द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट. आपकी पॉजिटिव प्लेट की तरफ कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन ये प्रूव करती है कि दीज आर नेगेटिव चार्ज. ठीक है? द आंसर दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस इज अ नेगेटिव चार्ज. बट आप बेटा रीजन के साथ देंगे तो आपने ये रीजन जरूर लिखनी है डिफ्लेक्शन वाली. क्लियर? क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज इज, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज. हम प्रीवियसली ये सारी डिस्कस करके आए हैं, आपने वहां से ही देखनी है और वहां से 5 एनी 5 लिखेंगे फॉर शॉर्ट. और जहां पे उन्होंने रिक्वायरमेंट ही 5 की दी है, अगर यहाँ पे बेटा 2 की रिक्वायरमेंट होगी तो आप 2 भी लिख सकते हैं. क्लियर है? आप इसमें से देखें, यहाँ पर हम सारी डिस्कशन करके आए हैं. These rays travel straight in perpendicular direction to cathode surface. They can cast a sharp shadow. They can deflect. They rise the temperature of the body. And J.J. Thomson discovered their charge to mass ratio. अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं. क्लियर?
Now move on to another question, that is the atomic symbol of a phosphorus ion is given as. हमारे पास उसका atomic symbol कैसे है, phosphorus ion का, not phosphorus ion है, तो ये देखें इस पे चार्ज आ रहा है 3 पॉजिटिव, उसके atomic number atomic mass भी given है, ठीक है। Now इसके पार्ट्स में बेटा let's have a look on the first part, that is how many proton, electron and neutron are there in the ion. उन्होंने इस आयन की स्पेसिफिकेशन देते हुए आपसे पूछा है इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो बेटा आप इसका आंसर कैसे देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे मेंशन है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू दी एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 15 है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 15, क्लियर। एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आपको अच्छे से पता है एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है 31, तो एटॉमिक मास में से अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल देंगे तो रिमेनिंग आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। सो यहाँ पे सोल्यूशन के साथ आंसर दिया हुआ है 31 माइनस 15 इज इक्वल टू 16, द आंसर इज 16। एंड द लास्ट वन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको अच्छे से पता है जितने प्रोटॉन होते हैं एक एलिमेंट में उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे चेंज क्या है बेटा, ये प्रोटॉन मौजूद है आपके पास और ये आयन है तो 3 नेगेटिव है, विच मीन्स इट हैव 3 मोर इलेक्ट्रॉन। सो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन में अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो ऐड करेंगे फॉर द आयन और आपके पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर। नाउ move on to the next part, that is what is the name of ion. The name of this ion is phosphide ion, clear. C part is draw the electronic configuration of the ion. अब आपने इस ion की electronic configuration draw करनी है, that is अगर हम उसको shells में देखें तो 2, आपको अच्छे से पता है कितने हैं, number of proton 15 और number of electron कितने हैं 18। तो आपने number of electron जितने collectively आपके पास आ रहे हैं for the ion उसको देखते हुए इसकी electronic configuration करनी है। K is equal to 2, L is equal to 8 and M is equal to 8, ठीक है। अब इनको अगर आप काउंट करें, सम अप करें तो कितने हो गए, 8 plus 8 16 plus 2 18, ये क्लियर। नाउ अगर आप सबशेल में देखें बेटा तो सबशेल में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे काउंट करके देखें क्या 18 पूरे हो रहे हैं, 2 plus 2 4 4 plus 6 10 10 plus 2 12 and 12 plus 6 is equal to 18। so ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर होगी। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, दैट इज name the noble gas which has the same electronic configuration as the phosphorus ion has। अब बेटा इसको phosphide ion भी कह सकते हैं और phosphorus because it is a symbol of phosphorus, so ये phosphorus ion भी कहलाएगा, ठीक है। सो आपको अच्छे से पता है इस वक्त इस आयन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 18, तो ये किस वाली नोबल गैस के साथ मैचअप करेगा, दैट इज आर्गन, बिकॉज आर्गन हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18, क्लियर। नाउ another question from the exercise is differentiate between shell and subshell with the example of each। बेटा आप लोगों ने इनके कॉलम बना लेने और फिर उसका आंसर देना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शेल के साथ। द कॉलम ऑफ शेल, द फर्स्ट पॉइंट इज शेल आर मेड एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। आपको अच्छे से पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई क्या करता है, शेल, दैट इज अ सर्कुलर ऑर्बिटल। अगला पॉइंट क्या है, शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस एंड they are represented by K, L, M, N and so on। बेटा इसका डिटेल कॉन्सेप्ट पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में मौजूद है। देन अनदर कॉलम इज फॉर सबशेल और उसका पहला पॉइंट क्या आएगा, उसी की रेलेवेंसी के साथ आप देंगे, बिकॉज कंपैरिजन है तो आपने दोनों पॉइंट एक साथ 1 1 में लिखने हैं। अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सबशेल। द नंबर ऑफ सबशेल इन अ शेल इज इक्वल टू द एन वैल्यू। आपको अच्छे से पता है जितना नंबर ऑफ शेल आएगा मतलब जितना nth वैल्यू आएगी, अगर n 1 है तो आपका सबशेल भी 1 होगा, अगर n 2 है तो सबशेल भी 2 होंगे, अगर n 3 है तो सबशेल भी 3 होंगे, क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट इज ईच सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर S P D F, ठीक है। और ये डिफरेंस याद रखना है, शेल्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एंड सबशेल रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, और सीक्वेंस भी चेंज नहीं होता, क्लियर। जी स्टूडेंट्स, question number 5 from the exercise is that an element have an electronic configuration 17, how many electrons are present in K, L, M shell of that atom। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर उन्होंने कितना दे दिया हुआ है 17, which automatically means it has 17 electron, clear।
अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बेटा, और इसमें उन्होंने हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसमें पूछी है? शेल्स में, सब शेल्स में नहीं पूछी। तो आप लोग जस्ट इसको इसी तरह से लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दैट एलिमेंट व्हिच हैव 17 इलेक्ट्रॉन इन इट्स शेल्स, दैट इज k is equal to 2, L is equal to 8, and the remaining electron which are 7 are settled in M shell. Clear? Now, the next short question is, write down the electronic configuration of aluminium ion. How many electrons are present in its outermost shell? ठीक है बेटा, इसका आंसर आपने किस तरह से देना है? सबसे पहले बेटा आप एल्यूमिनियम की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। ग्राउंड स्टेट का मतलब है जो एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से हमें मिलता है, एल्यूमिनियम हैव 13 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाती है? K2L8 एंड M3। अब आप चलते हैं अगर एल्यूमिनियम आयन की तरफ, दैट इज Al+3, विच मीन्स एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। सो आपके पास ये जो M शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन थे वो उसने लूज कर दिए। तो अब एल्यूमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? K2N-L18। क्लियर? नाउ इफ यू लुक of these electronic configuration in subshell, that is 1s2, 2s2 and 2p6, जो इलेक्ट्रॉन इसके 3s में और 3p में थे वो उसने क्या कर दिए हैं? रिमूव करवा दिए हैं। क्लियर? नाउ there are 8 electron in outermost shell. Obviously अगर आप सब shells को देखते हैं तो आपके पास outermost shell ये है जिसमें 2 plus 6 8 इलेक्ट्रॉन है, और अगर आप shells में देखते हैं तो L is the outermost shell that have 8 electron. Clear? The next short question from the exercise is question number 7. Magnesium has electronic configuration that is 2, 8 and 2. ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन के आपके पास पार्ट्स हैं। The first or A part is how many electron are in the outermost shell. बेटा आपको अच्छे से पता है, यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस को फॉलो अप करें तो आपके पास सीक्वेंस है 2, 8 and 2. The outermost shell contain 2 electron. The answer for this is 2 electrons. Clear? The second part of this question is in which subshell of the outermost shell electrons are present. बेटा इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करनी है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑन द बेसिस ऑफ द सबशेल। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस सीक्वेंस इज 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। तो बेटा आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लग रहा है कि इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है? 3s सबशेल में है। द आंसर इज the electron present in 3s subshell. Clear? The C part for this question is why magnesium tends to lose electron. मतलब magnesium electron की loses को preference क्यों देता है? आंसर है बेटा आपके पास to complete the octet. अब बेटा आपको अच्छे से पता है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता ही किस लिए कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। सो मैग्नीशियम भी इसीलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मैग्नीशियम मेटल लूजेस इट्स आउटर 2 इलेक्ट्रॉन and attain noble gas electronic configuration to become stable. जाहिर बात है बेटा वो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अंदर जो इनर शेल है उसका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, और वो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट को फॉलो अप करेंगे और वो मोर स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेगा लाइक अ नोबल गैस। क्लियर? The next short question from the exercise is what will be the nature of charge on an atom when it loses an electron and when it gain an electron. बेटा इसका सिंपल आंसर आपको अच्छे से पता है, when an atom loses electron it gain positive charge and when an atom gain electron it attain negative charge. Simple. आप इसकी इक्वेशन भी दे सकते हैं by referencing NaCl, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, देना चाहें तो मस्ट, और अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखी हो तो वहां आपने नेसेसरी देनी है, but for this chapter that is not necessary. Clear? Another short question from the exercise is for what purpose uranium 235 is used. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। uranium 235 is used to generate electricity by carrying out controlled nuclear fission reaction. The equation is here. इसी तरह से आपने बेटा इसको इक्वेशन के साथ रेफरेंस देते हुए सॉल्व आउट करना है। Another short question from the exercise is a patient has a goiter. How will it be detected? आपको अच्छे से पता है कि अगर किसी पेशेंट को गोइटर है तो उसको डिटेक्शन के लिए हमारे पास आइसोटोप मौजूद है आयोडीन 131, which is used for the detection of goiter in thyroid gland. Clear? Now another short question is give 3 properties of positive rays. आपके पास जो पॉजिटिव रे की प्रॉपर्टीज है बेटा वहां से आप इसकी कोई सी 3 प्रॉपर्टीज लिख देंगे और आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
क्लियर? अगर आपके पास इसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर से जाके इसका कॉन्सेप्ट ले सकते हैं. क्लियर? Another short question from the exercise is what are the defects of Rutherford's atomic model? आपको अच्छे से पता है Rutherford atomic model के हमारे पास 2 defects थे. Number 1 is according to classical theory of radiation, electrons being charged particles should release or emit energy continuously, यानी कि वो एनर्जी को रिलीज करके न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता, इसलिए ये उसका डिफेक्ट है. और अगर दूसरा देखा जाए तो अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो कंटिन्यूस वेक्टर बनाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, तो ये भी एक रदरफोर्ड का डिफेक्ट है. क्लियर? Another short question is as long as the electron remain in an orbit, it does not emit or absorb energy. When it does emit or absorb energy, ये आपको अच्छे से पता है, बोहर के मॉडल से ये क्वेश्चन पिक किया गया है. इसमें उसने पूछा है कि एक ही ऑर्बिटल में रहते हुए वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ना एब्जॉर्ब करेगा ना रिलीज करेगा, तो वो कब करेगा? आपको अच्छे से पता है, when an electron jump from lower orbital to higher orbital, it absorb energy. When it jumps from higher orbital to lower orbital, it radiate energy. और आप इसको डेफिनेट डायग्राम के साथ रेफरेंस भी देंगे. ठीक है?